دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام چلیں گے پاکستان، دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے وہاں پہ۔ سر کیا حالات ہیں اس وقت پنجاب کے؟ کوئی پرامن سلسلہ چل رہا ہے یہاں پہ؟ پنجاب میں تو فی الحال مہنگائی کے لحاظ سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ایک تو سردی کی شدت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، جس کی وجہ سے جو بازاروں میں رش تھا وہ بہت زیادہ ہو گیا، لیکن لوگ جو ہے وہ اس بات کا شکوہ شکایت کر رہے ہیں کہ یہاں پر ہماری قوت خرید سے سارا کچھ باہر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے بل جو اس دفعہ الیکٹریسٹی کے آئے ہیں وہ بھی بہت زیادہ بل آئے ہیں اور عوام اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ تیسرا، شہر کے اندر جو وارداتیں ہیں، جو کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ راہداری کی واردات، موبائل چھین لیا، چلتے ہوئے ڈکیتی کی واردات، اس کے اندر بھی بڑا ہوش ربا اضافہ ہے۔ تو یہ جو 3-4 مسائل ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک جو سچویشن ہے وہ اب یہ کہہ سکتے ہیں ایڈمنسٹریٹو طور پہ جو لاہور ہے وہ جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو بھی حالات اور واقعات ہیں وہ سارے حکومت کے مخالف جا رہے ہیں۔ نہ تو حکومت جو ہے وہ یوٹیلیٹی اسٹور پہ جو دعویٰ کیا تھا کہ ہم عوام کو سستا ریلیف دیں گے، آٹے کا جو تھیلا ہے وہ سستا دیں گے یا ان کو سامان سستا دیں گے، وہ بھی سستا نہیں دیا جا رہا۔ بجلی کے بلوں میں جو اضافہ ہے وہ بھی لگا ہوا ہے، اس کے علاوہ جو مہنگائی ہے تو عوام اس وقت بالکل پس چکی ہے۔ سر جس طرح آپ نے بتایا کہ کرائم میں اضافہ ہو رہا ہے، ظاہر ہے جہاں پہ روزگار نہیں ہوگا اور مہنگائی ہوگی کرائم میں اضافہ ہوگا، لیکن وہاں پہ یہ اطلاع ہے کہ پولیس اب سرے عام رشوت لے رہی ہے، کھل کر پیسے مانگتی ہے، یہ خبر ٹھیک ہے؟ جی بالکل، یہ بات کافی حد تک ٹھیک ہے کہ کئی جگہوں پر جو ہے وہ پولیس نے، کیونکہ یہ جیسے اعلان کیا گیا تھا لاک ڈاؤن، سمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کہ شہر میں 2 سے 3 دن تک بڑی گاڑیاں نہیں آئیں گی، تو جو پولیس اہلکار تھے وہ اکثر و بیشتر بڑی گاڑیوں، جو ٹرک اور سامان والے لوگ تھے ان سے پیسے لیتے تھے۔ اسی طرح جب SOS ناکے لگائے جاتے ہیں شہر کے اندر تو پولیس جو ہے وہ ناکوں پہ لڑکوں کو، افراد کو روکتی ہے، ہیلمٹ نہیں ہے آپ کے پاس کاغذ نہیں ہے، تلاشی دیں، تو وہ پھر ان سے پیسے وصول کرتے ہیں۔ لوگ جو ہے وہ اس کا شکوہ کرتے ہیں کہ ایک تو لاہور کے اندر، پاکستان کے اندر مہنگائی بہت زیادہ ہے، بے روزگاری بالکل نہیں، جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بے روزگاری ہی بے روزگاری ہے۔ ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے، جو بندہ برسر روزگار ہے وہ کہتا ہمارے اخراجات اتنے زیادہ ہے کہ ہم جو کمائی ہے وہ ہماری ساری دوسرے اخراجات میں چلی جاتی ہے، کھانا ہمارا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اوپر سے جب پولیس ناکے لگاتی ہے تو وہ بھی ہم سے رشوت وصول کرتی ہے، وہ بھی کہتے ہیں لاؤ 200 روپیہ دے دو، 500 روپیہ دے دو، تو وہ بہت زیادہ اس وجہ سے جو ہے وہ جبوں کا سکان ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہے، کیونکہ جب بھی یہ شام ہو جاتی ہے، جیسے ہی مغرب کے بعد کا وقت ہوتا ہے 6 سوا 6 بجے، پولیس جو ہے وہ اپنے اپنے ایریے کے اندر ناکے لگا لیتی ہے اور پھر رات کو تقریباً 10:30 11 بجے تک یہ ناکے رہتی ہے اور اس کی وجہ سے پھر وہ بھی پریشان ہے۔ اگر کوئی صبح کے ٹائم نکلتا ہے تو لائسنس کے چیک کرنے کے لیے ناکے لگائے ہوتے ہیں کہ آپ لائسنس چیک کرائیں، ہیلمٹ پہنے، تو عوام جو اس کو بالکل اس وقت جو ہے وہ حکومت سے ناراض ہے۔ سر یہ صفائی کا بڑا اعلان کیا تھا مریم نواز نے، کوئی پنجاب میں صفائی نظر آ رہی؟ وہ جو اعلان کیا تھا میڈم وزیر اعلیٰ نے، وہ کوئی مخصوص علاقے ہیں جن کے اندر صفائی کی جا رہی ہے، جیسے ماڈل ٹاؤن کا علاقہ ہے جہاں ان کی رہائش ہے، جس روٹ سے انہوں نے گزرنا ہے، یا جو پوش علاقے ہیں جہاں پر وہاں پر یہ صفائی کی مہم چلی گئی ہے۔ لیکن عام جو علاقے ہیں جیسے کہ آپ یہ لگا لیں شمالی لاہور ہے، یہ جو شاد باغ ہے، بادامی باغ کا علاقہ ہے، GT روڈ کا علاقہ ہے، یہاں پر اسی طرح وہ کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور وہ تمام چیزیں اسی طرح ہی پڑی ہوئی ہیں، کیونکہ یہ جو ٹی وی کے اندر آپ کو دکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، یہ کچھ ایک آدھ علاقہ ہوتا ہے جس کے اندر وہ یہ صفائی کی مہم ہوتی ہے، ٹرک لے کے آ رہے ہیں، پانی سے دھو رہے ہیں، یہ سارا کچھ کر کے اس کی فوٹیج بناتے ہیں، پھر ٹی وی پہ آن ایئر کر دیتے ہیں، اس کے بعد عوام کو پتہ لگ جاتا ہے جی بہت زیادہ کام ہو رہا ہے۔ تو یہ کچھ علاقوں کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لاہور کے چند علاقوں کے اندر صرف صفائی جو ہے یہ کی گئی ہے، باقی سارے علاقوں میں تو اسی طرح جو ہے وہ کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے۔ مرکز میں کچھ اس طرح کی اطلاع ہے کہ پیپلز پارٹی ناراض ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ گورنمنٹ زیادہ دیر نہیں چلے گی یا ابھی بیٹھے رہیں گے یہ لوگ؟ جی بالکل، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس حکومت سے بہت زیادہ تحفظات رکھتی ہے اور وہ اب کافی حد تک جو ہمیں ذرائع سے پتہ لگا ہے کہ گورنر صاحب کے پاس بھی ایک وفد گیا تھا، گورنر پنجاب جو ہے، تو ان سے بھی ملاقات کی ہے، انہوں نے بھی اس بات کا خیسہ ظاہر کیا کہ حکومت جو ہمارے ساتھ ڈیل کر کے اس میں بھی ایک نون آئی تھی، وہ ہمارے جو تحفظات ہیں اور جو ہمارے مطالبات ہیں وہ پورے نہیں کر رہی۔ ہمارا لیڈر بھی ان سے ناخوش ہے اور ہم بطور ایڈمنسٹریٹر بھی جو ہے ان کے ساتھ ہمارے کافی تحفظات ہیں، لیکن
मेन चीज ये है कि वो इनसे सख्त लाना है, और हुकूमत ने जो एक टीम बनाई हुई है जिसके अंदर राना सनाउल्लाह जो उनके मशीर सियासी है वो इस बात की तरफ कोशिश कर रहे हैं। जब हमारी उनसे इस मौजूद पे बात हुई कि क्या जो पीपल पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात है हुकूमत के साथ क्या वो दूर होंगे, तो राणा साहब ने बताया कि जी हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे तहफ़्फ़ुज़ात जो उनको शिकायत है या जो उनके मामलात है या मुतालबात है हम उसको पूरा कर सके। लेकिन अभी तक बज़ाहिर जो है वो कोई भी मुतालबा या इनकी जो शराइत है, जो नुकात पीपल्स पार्टी ने पेश किए हैं वो पूरे होते नजर नहीं आ रहे। तो अभी तक तो यही लग रहा है कि अगर ये मामला ज्यादा देर चलेगा तो फिर मुस्लिम जो नून है उनको हुकूमत करना जरा मुश्किल हो जाएगा। सर जो गोली चलाई थी अभी तक, कभी सागदार कहता हवाई फायरिंग की थी, कभी कहते लाइट चली गई है, लोग इससे मुतमिन हैं इस बात से? जी नहीं, ये को सागदार साहब ने जो ये चंद मुल्कों के जो सफीर है उनके साथ मुलाकात के अंदर ये बात बताई थी कि ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया, जिसको जो बाद में जो मुल्क के एम्बेसडर से उन्होंने अपने मुख्तलिफ टीवी चैनल के अंदर इंटरव्यू में बताया कि हम जो इसहाक डार साहब है जो वज़ीर ख़ारजा भी है और डिप्टी वज़ीर आज़म भी है, हम उनकी बात से मुत्तफ़िक नहीं है। ये सब झूठ है, क्योंकि जो फुटेज हमने देखी है ये जो दूसरे इंटरनेशनल मीडिया के नुमाइंदगान ने उसको कैप्चर किया है उसके मुताबिक फायरिंग भी हुई है, लाइट बंद करके चारों तरफ से उन्होंने इसके ऊपर फायरिंग की। अब हुकूमत जो है वो इसको मानने से इनकार कर रही है कि जी हमने कुछ नहीं किया, लेकिन जो फुटेज सामने आई है या जो उस वक्त मौके पर रिकॉर्ड की गई बातें हैं वो उसको नहीं जुटला सकती, क्योंकि हुकूमत के पास अब कोई भी रास्ता नहीं है कि इस बात की वजाहत को पेश करें कि उन्होंने इस ऑपरेशन को कामयाब करने के लिए चारों तरफ से इन अफराद के ऊपर फायरिंग की जो कि जमहूरी तौर पर अपना हक रखते थे और अपने हक को इस्तेमाल करते हुए एहतजाज करने के लिए, ये धरना देने के लिए आए थे। और इंटरनेशनल मीडिया का भी बहुत ज्यादा प्रेशर है, उनके पास भी वही फुटेज मौजूद है जो हमने देखी है कि उसमें फायरिंग की आवाज आ रही है, मशीन गन की फायरिंग, मशीन गन से फायर हो रहे हैं और सेल्फ ब्रस्ट गन चल रही है। तो इस तरह लोगों के ऊपर फायरिंग करना, ये तो एक ऐसा माहौल बना था जैसे कि आप किसी दुश्मन मुल्क के साथ जंग कर रहे हो तब आपकी फायरिंग की जा रही है। तो ये तो किसी भी कीमत पे मालूम नहीं हो सकता कि आप अपने ही मुल्क के लोगों के ऊपर जो कि जमहूरी तौर पर वहां पर अपने एहतजाज का हक लेकर आए थे, एहतजाज करने के लिए आए थे, आपने उनके ऊपर गोली चलाई थी। तो अब मुख्तलिफ जो एम्बेसडर हैं और गवर्नमेंट के जो चंद लोग हैं उन्होंने भी इस बात के ऊपर तशवीश का इजहार किया और ये वो कोशिश कर रहे हैं कि इसके ऊपर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए जो कि सारा फैसला सामने रखे कि क्या वाकई ये बात ठीक थी या सिर्फ ये एक झूठ था। सर पाकिस्तान में मजहबी नफरत में इजाफा, पिछले हफ्ते भी एक अहमदी को कत्ल किया गया कुल्हाड़ियों के वार करके, अभी एक इतला और मिली है, बताएंगे हमारे देखने वालों को? जी, बदकिस्मती के साथ जो पाकिस्तान है उसके अंदर जो जमात अहमदिया के अफराद है उनके साथ बहुत नारवा सलूक किया जा रहा है और मुख्तलिफ हीले और बहानों के साथ उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। आपको कुछ अर्सा पहले रिपोर्ट की थी कि रावलपिंडी में कुल्हाड़ियों के वार करके एक शख्स को उन्होंने कत्ल कर दिया था। इसी तरह मीरपुर खास सिंध के अंदर एक वाकया आज सुबह जो हमें रिपोर्टरली जो पता लगा है कि फजर की नमाज के बाद अमीर हसन साहब जो है फजर की नमाज पढ़ने के बाद वहां से निकल के तो आ रहे थे, तो रास्ते में जब वो गली के कोने पे पहुंचे तो वहां पर नामलूम अफराद ने उनके ऊपर फायरिंग कर दी है। तो उन फायरिंग की वजह से वो मौके पर चाबहाक हो गए। उनकी उम्र 40 साल थी। तो वहां पर इससे पहले भी उनको धमकी मिल रही थी। वहां पर जो मीरपुर खास का इलाका है सिंध का, वहाँ पे जो इलाके है ये खासी शदीद मुखालफत है यहाँ पर, और यहाँ पर जो जमात अहमदिया है उसको बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात है क्योंकि पुलिस जो है इस वक्त जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनके साथ भी शामिल है और किसी भी किस्म का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा। इसी तरह जनूबी पंजाब में भी जो जमात अहमदिया है उसको खासा तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार बनाया गया है। वहाँ पर भी आए रोज मीनार और मेहराब और वहाँ पर गिराने के वाकयात को नोटिस ही रिपोर्ट होते हैं कि वहाँ पर दरखास्त दी जा रही है कि जी आपके मीनार ऐसे हैं, आपकी मस्जिदें ऐसी हैं। तो इस वक्त जो लास्ट पिछले 6 से 8 महीने में जो पाकिस्तान के अंदर जो ये जमात अहमदिया है इसके साथ बहुत सख्त नारवा सलूक किया जा रहा है। सर जो मसाजिद सील की गई थी लाहौर में, अब खुल गई है, वहाँ पे नमाज वगैरह होती है या अभी बंद पड़ी है? नहीं जी, वो जो लाहौर में जो वाकया हुए थे, जो आपको बताया था इस्लामिया पार्क का वाकया था या सिंहपुरा का जो बगमानपुरा का जो वाकया था, वहाँ के अंदर जो अहमदियों की जो इबादत गाह है वो उसी तरह बंद है जैसे पहले बंद थी। बल्कि पुलिस जो है वो कोशिश और ये कहती है कि अगर
अगर आपने दोबारा इसके ऊपर कोई ऐसी मतलब खोलने की कोशिश की या कोई ऐसा मामला हुआ तो तमाम जिम्मेदारी जो है वो आपके ऊपर होगी, क्योंकि पुलिस जो है वो एक अपना मौसर किरदार अदा नहीं कर रही, क्योंकि जिस वक्त मॉब इकट्ठा होकर आता है, लोग इकट्ठे होकर आते हैं, तो पुलिस उसी टाइम जो है ना वो अपनी लाइन को तब्दील कर देती है। हालांकि पुलिस को ये चाहिए कि जो मीडिया एक अकलियत होने के नाते उनका भी वही राइट है जो पाकिस्तान में आम शहरियों का राइट है, लेकिन अभी तक जितनी भी इनकी जो लाहौर के अंदर इबादत गाहें हैं वो सब सील है। सर एक और चीज बताइए कि कितना मुश्किल है वहां पे लोगों में रहना एक अहमदी के लिए इस वक्त जो हालात बने हुए हैं। ये भी पता चला कि बाइकआउट भी कर देते हैं, सामान भी नहीं देते, तो आप क्या समझते हैं कि काफी मुश्किल जिंदगी गुजर रही है वहां पे? जी बिल्कुल, यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किलात जो है वो पेश है, क्योंकि जिस किसी इलाके में जो के अक्सरियत के साथ जो अहमदी कम्युनिटी के अफराद रहते हैं वहाँ पर तो मामलात और तरीके से पेश आते हैं, लेकिन बाद जगहों के ऊपर हमें रिपोर्टरली आते वाकयात का भी पता लगता है जहाँ पर अहमदी कम्युनिटी के अफराद एक या दो घर आने की सूरत में रहते हैं, तो वहाँ पर जो लोकल लोग हैं वो उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं। उनको सलाम दुआ नहीं उनसे की जाती, बल्कि जो लोग उनसे मिलते हैं उनको भी मना किया जाता है, और जो करीब के लोग हैं, जो बाजार है जहाँ से अशिया खुर्दोनोश मिलती है या जो जरूरत की दूसरी अशिया मिलती है, उसके भी वहाँ पर जाकर लोगों को बता दिया जाता है कि ये बंदा कादियानी है, ये इस्लाम में इसका कोई दखल नहीं है, ये काफिर है, इनके साथ कलाम नहीं करना, इनको चीजें नहीं देनी। तो बहरहाल ये जो वाकयात होते हैं ये खवातीन को भी इसी तरह सामना करना पड़ता है कि अगर वो बाजारों में जाती है तो उनको भी वो कहते हैं कि आप कादियानी है, आपने बुर्का इस किस्म का पहना हुआ है, हम आपको सामान नहीं दे सकते। अगर कोई बंदा दूसरा जाता है तो उसके साथ भी ये सलूक किया जाता है। तो जहाँ पर अहमदी कम्युनिटी के अफराद ज्यादा तादाद में है वहां पर जो उनके लिए थोड़ी बहुत आसानी है, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर अफराद जो यहाँ पर शुरू से रह रहे हैं सब अफराद को पता होता है कि ये अहमदी कम्युनिटी के अफराद है, लेकिन उनको इस वक्त आज के हालात में उनके लिए यहाँ पर सर्वाइव करना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। बल्कि आप अगर ये कहें कि वो एक सख्त अजियत के साथ यहाँ पर वक्त गुजार रहे हैं तो ये काम नहीं होगा। अच्छा आखिर पे बताइए, उलमा कहते हैं कि जो अहमदी है ये गद्दार है पाकिस्तान के, कोई केस तो सामने आज तक आया नहीं, उल्टा कुर्बानियां नजर आई है अहमदियों की, तो क्या वजह है? जी बिल्कुल, ये बात तो देखे उनका तो एक स्टेटमेंट है, तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया कि वो गद्दार भी है, वो काफिर भी है, वो मुर्तद भी है, वो इस्लाम के लिए बहुत बड़ा दुश्मन है। लेकिन आज तक बदकिस्मती के साथ किसी भी उलमा जो है उन्होंने ये बात साबित नहीं की कि पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक जितनी भी कुर्बानियां दी गई है, जो इनके बड़े बड़े अफराद हैं वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि जो चौधरी जफरुल्लाह खान साहब थे वो भी अहमदी कम्युनिटी से तल्लुक रखते थे। उसके अलावा जो मईशत के वक्त जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में जो गवर्नर थे स्टेट बैंक के, वो भी उनका तल्लुक भी अहमदी कम्युनिटी के साथ था। इसके अलावा जो पाकिस्तान आर्मी के अंदर जिस वक्त जंग हुई है पाकिस्तान की इंडिया की, उस वक्त जो तारीख में यहाँ पे म्यूजियम बना हुआ है वहां पर आप चले जाए, वहां पे लिखा हुआ है अख्तर अली मलक, ब्रिगेडियर अख्तर अली मलक। तो ये जो जनरल अख्तर अली मलक, ये जो सारे अफराद थे ये इनका तल्लुक अहमदी जमात के साथ था, और ये उस वक्त सारे उस किरदार में जंग में सबसे आगे पेश रहे हैं। उन्होंने अपनी इस मुल्क के लिए खिदमत की है, काम किया है और अपनी खिदमत को पेश किया है। अब वो अलग बात है कि ये लोग इस बात को तस्लीम करने से इनकारी है या इस बात को मानना नहीं चाहते कि इन लोगों ने काम किया, क्योंकि अगर किसी बंदे ने कोई आज तक गद्दारी की होती तो कोई ना कोई वाकया या कोई ना कोई शख्स सामने आता कि ये शख्स है जी ये अहमदिया कम्युनिटी से तल्लुक रखता है, इसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, या ये दहशतगर्द बंदा है, इसने अहमदियों को नुकसान पहुंचाया है या इससे मुल्क को नुकसान पहुंचा। तो आज तक तो ऐसी बात कोई भी नहीं आई, बल्कि उल्टा ब्यूरोक्रेसी के अंदर और पुलिस के अंदर ये बात मशहूर है कि अगर अहमदियों के ऊपर कोई हमला किया जाता है या अहमदियों को कोई नुकसान पहुंचाया जाता है या मारा जाता है तो वो आगे से पलट के जवाब भी नहीं देते, और उनकी कोशिश ये होती है कि हम सारा मामला जो है वो हमें पता है कि आप पाकिस्तान में हमारे ऊपर जीते हैं, मुश्किलात आ रही है, हम सारा मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं, इसलिए हम तो ये तुम्हारा जवाब भी नहीं देते। तो ये सारी बातें करने के बावजूद ये जो उलमा कराम है इन्होंने अपना एक प्रोपेगेंडा रखा हुआ है कि ताकि अगर हम इस किस्म की गुफ्तगू पाकिस्तान के अंदर है कि आवाम के सामने नहीं करेंगे तो हमारी पजीराई कैसे होगी। तो बहरहाल अभी तक तो कोई ऐसा। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो हालात बने हुए, कल मैंने एक इंडिया की वीडियो देखी थी, उसमें प्रोग्राम किया था। हफ्ते में एक बंदा कोई ऐसा बेचारा होता है जिसको कत्ल कर दिया जाता है बगैर वजह, मजहबी नफरत। पिछले हफ्ते एक हुआ, एक इस हफ्ते हुआ, 40 साल उम्र, पिछले हफ्ते भी इतनी उम्र नहीं थी मेरा, वो भी इसके करीब करीब थी। ये जुल्म इतना बड़ा है और लोग समझते नहीं कि नाहक लोगों को कत्ल करना, मजहबी नफरत की वजह से कत्ल करना, पूरे मुल्क की सलामती जो है
اس وقت کس طرف جا رہی. تو جب تک کہ ایسے ظالم لوگ جو ہیں وہ اپنی عقل کے ہوش کے ناخن نہیں لیں گے اس وقت تک یہی ہوگا. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.